Okay, now we are going to start this AS paper to the family, and the first part is all about 3.1. Okay, first of all, we need to understand what is family, or you can say a definition of family. Before moving forward, it's a kind request from my side, like you need to cover the perspective first. Okay, you need to have a basic understanding of perspective, what is structuralism, what is functionalism, what is Marxism, okay, and what is feminism. Functionalism is all about consensus structuralism, supports the idea of existing social order and social institutions. Marxism and feminism is all about the conflict structuralism, which oppose the idea of social institution and existing social order. Okay. First of all, we need to move forward and we need to understand the Murdoch's definition of the family. First of all, we need to understand the Murdoch's definition of the family. Whenever we talk about any sociologist, it is mandatory to understand their perspectives or their point of view. Okay. Murdoch is a functionalist, and if we talk about any functionalist, they will definitely support family and other social institutions. Functionalist always supports the family and other social institutions. Why they support the family and other social institutions? Due to the functions of these institutions. Functions of social institutions. They always talk about this phenomena like functioning of social institutions may lead towards the functioning of society. Functioning of social institutions may lead towards the functioning of society. Social institutions function करेंगे तो society function करेगी according to the functionalist. Okay. So Murdoch's definition of the family must rotate around the idea of the functions of the family. Okay. What are the functions of the family? Reproduction, socialization, economic provision. All these are the functions of the reproduction. All these are the functions of the family. Okay. But on the other hand, functionalists are having a meta-narrative. Functionalists are having a meta-narrative. They oppose the idea of free will or individualism. In contemporary world, there are so many functions of family which are supported by, which are done by other social institutions. Or some social functions of the family are disbanded over the period of time. You can see this particular thing like in contemporary world, many functions of the family are going to performed by other social institutions, or the importance of those social functions are going to be declined in contemporary world. Is it clear to you all? So we need to understand this side of the story also, which we used to call postmodern perspective. We have discussed this thing before, like in this contemporary world, there is no one meta narrative. Every individual will develop his own narrative on the basis of his own experiences. Is this clear to you all? So the idea of functionalist or functionalist idea of the family is rotates around a meta narrative, and other side of the story rotates around the narrative based point of view. Is it clear to you all? Whenever we talk about the Murdoch's definition of the family, what I did, मैंने पूरी definition को divide किया हुआ था parts में, ठीक है? Whenever we talk about the Murdoch's definition of the family, we need to understand this thing. Like, according to the Murdoch, adults of both sexes अब
एडल्ट्स ऑफ बोथ सेक्सेस का मतलब क्या होगा? Murdoch's trying to explain heterosexual relationship. Heterosexual relationship का मतलब क्या होता है बॉस? Heterosexual relationship means you are explaining gender into binary means. ठीक है? It means male and female. Okay. According to Murdoch's definition of the family, adults of both sexes, ठीक है, living together. Once they are living together, they are going to interact with each other. We can call this thing primary socialization. So the definition would be like adults of both sexes living together. Another comparative element is having socially approved sexual relationship. बहुत simple सी बात है. Having socially approved sexual relationship. What is the social approval for sexual relationship? The social approval of sexual relationship rotates around what? It's all about a marriage. If you have a marriage, it means you've got a social approval to have sexual relationship with a partner. Okay? So the definition would be like adults of both sexes living together, having socially approved sexual relationship. Once you are having sexual relationship, then you must be having kids. Having kids. Own or adopted. Having kids, own or adopted. It means they are talking about the function of reproduction. Another function is having economic provision. It means economically productive. The definition would be like adults of both sexes living together, having socially approved sexual relationships, having kids, own or adopted, or having economic provision. So this is very conventional, stereotypical definition given by the Murdoch, who is a functionalist. Is it clear to you all? This definition rotates around the functions of the family. Okay. But in contemporary world, this definition is quite challenged by other sociologists like postmodernists. Because in contemporary world, there is no fixed sort of relationship. There is no fixed sort of functions in contemporary world. In postmodern societies, the ideas of Murdoch is being challenged. Like there's a constant rise in homosexual relationship. There's a constant rise in lat relationship living apart together. It means the idea of Murdoch, like adults of both sexes, is being challenged. Having socially approved, adults of both sexes living together. तो living apart together से वो चीज़ challenge हो रही है. फिर having socially approved sexual relationship में cohabitation बढ़ रहा है, live-in relationships बढ़ रही हैं. ठीक है भाई, वो जो लिव इन रिलेशनशिप बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है कि लिव इन में रहना है, मैंने शादी नहीं करनी. ठीक है, वी यूज्ड टू कॉल इट टेस्ट फॉर द पार्टनर्स. वी यूज्ड टू कॉल इट टेस्ट फॉर द पार्टनर्स. दिस इज कॉल्ड कोहैबिटेशन रिलेशनशिप. ठीक है. अच्छा, लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं. अगर कोहैबिटेशन है, ठीक है, और कोहैबिटेशन के अंदर बच्चे पैदा हो जाएं, ठीक है, तो रोनाल्डो लाइफ स्टाइल, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वी यूज्ड टू कॉल इट कॉमन लॉ फैमिली. ठीक है, सो वी यूज्ड टू कॉल इट कॉमन लॉ फैमिली. ठीक है, सो सिंपल लेते हैं इस चीज को. क्या हुआ सिनेरियो? मर्डॉक ने कहा था एडल्ट्स ऑफ बोथ सेक्सेस, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज में होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप आ गया. ठीक है, मर्डॉक ने कहा लिविंग टुगेदर, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में लिविंग अपार्ट टुगेदर आ गया. ठीक है, मर्डॉक ने कहा हैविंग सोशली अप्रूव्ड सेक्सुअल रिलेशनशिप, कंटेम्परेरी सोसाइटी में कोहैबिटेशन और लिव इन रिलेशनशिप आ गया. ठीक है, फिर कहता है हैविंग किड्स ओन और अडॉप्टेड. ओन और अडॉप्टेड यानी कि रिप्रोडक्शन का फंक्शन.
पूरी दुनिया में एक चीज डेवलप हो रही है which we used to call it child free attitude. अब चाइल्ड फ्री एटीट्यूड क्यों डेवलप हो रहा है? एजुकेशन की वजह से, करियर की वजह से पीपल डोंट वांट टू हैव चिल्ड्रन, ठीक है? इट्स कंसिडर्ड एज अ ऑब्स्टिकल फॉर द डेवलपमेंट. अच्छा जी, अच्छा जी. So if we talk about more, next function which was given by the Murdoch, having economic provision, it means economically productive, ठीक है? In contemporary world we can see there are so many states like Canada, UK, they are considered as welfare states. We used to call them welfare states, ठीक है? अब welfare state क्या कर रही हैं? गवर्नमेंट पैसे देती है, उनका ख्याल रखती है, बच्चे जो होते हैं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है, एक तरह से उनका टेक केयर किया जाता है, ठीक है? दे आर गवर्नमेंट एसेट, स्टेट का एसेट कंसिडर किया जाता है, ठीक है? सो ऑटोमेटिकली इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड द आइडिया ऑफ द मर्डॉक्स डेफिनेशन ऑफ द फैमिली इज बीइंग चैलेंज्ड. क्लियर हो रही है बात कि किस तरह से मर्डॉक ने एक फिक्स डेफिनेशन दी थी, उसको आगे जाके पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड ने चैलेंज कर दिया. इसकी इवैल्यूएशन है, बिल्कुल ऐसा ही है. आपको एक्चुअल में इवैल्यूएशन भी है और मैं आपका माइंडसेट बिल्ड कर रहा हूं टू राइट अगेंस्ट द थिंग. यानी कि आप एक कन्वेंशनल चीज सोच रहे हो तो उसके वाले से आप पोस्ट मॉडर्निस्ट चीज के बारे में आपका दिमाग चलना चाहिए कि यार ये चीज इसके अगेंस्ट में ये भी हो सकती है, हो सकता है, ठीक है? अच्छा जी, मर्डॉक ने पहले तो हमें क्या बताया, एक डेफिनेशन ऑफ द फैमिली बताया. फिर अपने इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं मर्डॉक, और मर्डॉक ने फिर हमें क्या बताया अपने इसी कॉन्सेप्ट के साथ, मर्डॉक्स फैमिली प्रीरेक्विजिट्स. अब प्रीरेक्विजिट्स का मतलब क्या होता है? इनिशियल रिक्वायरमेंट्स, कि यार ये तो फैमिली के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं ही हैं, ठीक है? आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे, देयर आर सम प्रीरेक्विजिट कोर्सेज, यानी कि अगर आपने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़नी है तो उससे पहले आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के दूसरे कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है? सो इट मीन्स कि दुनिया के अंदर, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है? देयर आर फ्यू थिंग्स जो फैमिली के लिए परफॉर्म करना बहुत जरूरी हैं, which are mandatory for the family to perform those functions, ठीक है? तो अगेन मर्डॉक ने एक्चुअल में इसको कहते हैं हम फैमिली के मर्डॉक्स फंक्शनल प्रीरेक्विजिट्स, फंक्शनल प्रीरेक्विजिट्स. According to the Murdochs, there are 4 functional prerequisites. Whenever we talk about 4 functional prerequisites, what it means कि ये 4 चीजें फैमिली के लिए परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, ठीक है? 4 functional prerequisites means number 1 is sexual control. अब sexual control का मतलब क्या होता है? Exclusive relationship with the partner. यही जो आज के दौर का मसला है. ये कहते हैं भाई नो, इन्होंने पॉलिएंड्री और पॉलीगैमी को अपोज किया हुआ है. पॉलीगैमी क्या होती है वो आप तमाम चीजों को आगे जाके डिस्कस करेंगे. मल्टीपल पार्टनर्स वाली बात, विथ पार्टनर. द फर्स्ट एलिमेंट वाज सेक्सुअल कंट्रोल. अनदर थिंग वाज फैमिली के लिए प्राइमरी सोशलाइजेशन परफॉर्म करना बहुत जरूरी है.
सही है. We used to call it face to face intimate socialization. ताकि फैमिली अपने नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स, रोल्स आगे ट्रांसफर कर सके. ठीक है. फेस टू फेस इंटीमेट सोशलाइजेशन. फिर तीसरा फंक्शनल प्रीरेक्विजिट फैमिली के लिए परफॉर्म करना जरूरी है. वी यूज्ड टू कॉल इट रिप्रोडक्शन. बच्चे जो हैं फैमिली पैदा करती है, परियां लेके आके घर के बाहर नहीं रखे जाते हैं. ठीक है. तो बहुत ही सिंपल सी बात है, दैट यू यूज्ड टू कॉल रिप्रोडक्शन. दुनिया की वो सोसाइटी जहां पे रिप्रोडक्शन का फंक्शन नहीं परफॉर्म होता, वहां पर एक क्राइसिस ऑफ वर्कफोर्स पैदा हो जाता है, क्राइसिस ऑफ कंज्यूमर्स पैदा हो जाता है. लाइक स्पेनिश सोसाइटी की एग्जाम्पल है. ठीक है. वहाँ आप अगर आप यूरोप के मॉल्स को देखो तो वहां पर भाई मॉल खाली पड़े हुए हैं, कंज्यूमर ही नहीं है, यंग लोग हैं ही नहीं. समझ में आई बात. तो रिप्रोडक्शन का फंक्शन सोसाइटी की फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी होता है. ठीक है. फिर आगे आते हैं हम इकोनॉमिक प्रोविजन. कमा के लाके देना. क्या क्या बेटा? कमा के लाके देना. अब अगेन आप इन फंक्शंस को अपोज भी कर सकते हो कि भैया आज की दुनिया के अंदर ये फंक्शंस परफॉर्म नहीं हो रहे होते, और ये फंक्शंस जो हैं आगे जाके दुनिया के अंदर ये जो फंक्शंस जो हैं फंक्शन प्रीरेक्विजिट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने पहले ज़माने में थे. ठीक है. अच्छा जी, तो हमें क्या समझ में आता है? सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शनल प्रीरेक्विजिट्स गिवन बाय द फैमिली. ठीक है. देखो मेरी बात सुनो, इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करता हूं. देखो जब फैमिली की फंक्शनिंग फंक्शनलिस्ट के मुताबिक क्यों जरूरी है. देखो एवरीवन हियर, एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम कहते हैं हम फंक्शनल फिट का कॉन्सेप्ट. ठीक है. There are three social institutions which are closely interlinked and interconnected with each other. Listen to me. Number one is a family. फैमिली ने क्या किया? एक बच्चे को रिप्रोड्यूस किया, सोशलाइज किया. इस फैमिली ने इस बच्चे को रिप्रोड्यूस और सोशलाइज करने के बाद क्या किया? अब इस बच्चे को फैमिली ने रिप्रोड्यूस किया, सोशलाइज किया. ठीक है. फिर हम आगे जाते हैं. इस बच्चे ने इसको बड़ा करने के बाद सेकेंडरी सोशलाइजेशन के हवाले किया, विच वी यूज्ड टू कॉल एजुकेशन. एजुकेशन क्या करेगा? इसको एजुकेट करेगा. किसके लिए एजुकेट करेगा? वर्क फोर्स के लिए, जिसको हम कहते हैं वर्क प्लेस. अब इस वर्क प्लेस ने इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड की, और ये इकोनॉमिक सपोर्ट एट द एंड ऑफ द डे फैमिली को हेल्प आउट करेगी इकोनॉमिक प्रोविजन के अंदर. सोसाइटी में सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस की फंक्शनिंग बहुत जरूरी होती है. सोसाइटी के सारे सोशल इंस्टीट्यूशन की फंक्शनिंग बहुत जरूरी होती है. अदरवाइज अगर वो जरूरी नहीं चलेंगे तो अब ये पूरा साइकिल अफेक्ट हो जाएगा. समझ रहे हो मेरी बात? अगर फैमिली ने रिप्रोड्यूस नहीं किया, फैमिली ने सोशलाइज नहीं किया, तो बच्चे तमीज़ वाले नहीं निकलेंगे, अजीब से निकलेंगे. वो ऑटोमेटिकली क्या होगा वो, हाँ, वो जाहिर से अजीब से निकलेंगे. ठीक है. तो एजुकेशन भी कुछ उनका बिगाड़ नहीं सकेगा. सही है. अगर एजुकेशन ने इफेक्टिव वर्कफोर्स तैयार नहीं की तो वो पैसे कुछ नहीं कमा सकेंगे. वर्क प्लेस ने अगर सही से सेटल अप नहीं किया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? अब लेट्स सपोज पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा डिजिटल करेंसीज के अंदर बोले मैंने बिटकॉइन के अंदर उसने पीएचडी कर लिया. सही है. ठीक है. पाकिस्तान में एआई के अंदर किसी ने पीएचडी कर लिया. ठीक है. अब एजुकेशन तो, लेकिन वर्क प्लेस है ही नहीं.
पाकिस्तान वाले तो फिर उसको अंदर करेंगे, FII वाले अंदर कर देंगे, बोलेंगे भाई अंदर जाओ बेटा, तुम डिजिटल करेंसी पे काम करो, तुम मनी लॉन्ड्रिंग कराओगे हमसे, सही है, पाकिस्तान वालों से। तो ऑटोमेटिक, समझ रहे हो मेरी बात? तो वर्क प्लेस का इफेक्टिव होना बहुत जरूरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब। तो हमने अभी तक डिस्कस किया मर्डॉक्स डेफिनेशन ऑफ द फैमिली एंड मर्डॉक्स के फंक्शनल प्री रिक्विजिट्स। ठीक है, अच्छा अब इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, इस कहानी को अगर हम थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, ठीक है, दुनिया में कॉन्स्टेंटली एक डिबेट चल रही है। वो डिबेट ये चल रही है, द फंक्शंस ऑफ द फैमिली आर डिक्लाइनिंग, द फंक्शंस ऑफ द फैमिली आर डिक्लाइनिंग। ठीक है, बट दूसरी तरफ एक और बात चल रही है, वो ये बात चल रही है कि देयर आर सम फंक्शंस व्हिच कैन ओनली बी परफॉर्म बाय द फैमिली। ठीक है, अब इसी कहानी के अंदर हमारे पास कौन आ जाते हैं? हमारे पास थ्योरिस्ट आते हैं, पार्सन्स एंड बेल्स। वही इन्होंने दिया आइडिया किस चीज का? बेसिक और इररिड्यूसिबल functions of the family, बेसिक और रिड्यूसिबल फंक्शंस ऑफ द फैमिली। ठीक है, अब ये आइडिया क्या था बेटा? बहुत ही सिंपल सी चीज है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पार्सन्स एंड बेल्स देयर आर टू फंक्शंस व्हिच कैन ओनली बी परफॉर्म बाय द फैमिली। ठीक है, नंबर 1 वाज प्राइमरी सोशलाइजेशन, number 2 was stabilization of adult personalities, कि आपकी पर्सनालिटीज जो हैं वो जो डेवलप होंगी वो भी आपकी फैमिली करके देगी। क्या करके देगी बेटा? फैमिली करके देगी। समझ में आई बात? सही है। अब ऑटोमेटिकली अगर हम इस चीज को आगे लेके चलते हैं, ठीक है, यानी कि दीज आर टू फंक्शंस गिवन बाय द पार्सन्स एंड बेल्स विच आर बेसिक और इररिड्यूसिबल फंक्शंस, यानी कि जो फैमिली के अलावा कोई और परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, सो whenever we talk about the idea of basic or irreducible functions of the family, तो हमें क्या समझ में आता है? दिस वॉज गिवन बाय द पार्सन्स एंड बेल्स। अब मैं आपके सामने एक चीज मेंशन करता हूं। हम 3.1 में पर्सपेक्टिव, फैमिली के पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे इसके अंदर फंक्शनलिस्ट, पर्सपेक्टिव। अब फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में हमारे पास सबसे पहले आ गए मर्डॉक। अब मर्डॉक के 2 डायमेंशंस आ गए हमारे पास, डेफिनेशन एंड फंक्शनल प्रीरेक्विजिट्स। फिर हमारे सेकंड थ्योरिस्ट हैं पार्सन्स एंड बेल्स। इन्होंने, अब बेटा ये याद कर लीजिएगा लाजमी, ये आप लोगों को पूरा टॉपिक को याद कर मेमोराइज करने में हेल्प करेगी चीज। सही है, बेसिक और इररिड्यूसिबल फंक्शंस की बात की है। फिर हमारे पास आते हैं बेटा फ्लेचर, इन्होंने बात की है कोर एंड पेरिफेरल फंक्शंस की। बेटा ये सारे फंक्शनलिस्ट
जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं बेटा फंक्शंस ऑफ द फैमिली की, ठीक है जी, बेसिक और इरेड्यूसिबल फंक्शन, सही है। फिर हमारे पास आएंगे हॉर्विट्ज। हॉर्विट्ज ने माइक्रो टू मैक्रो वर्ल्ड की बात की है, ठीक है। अब इनके ऊपर आगे फर्दर तौर पे डिस्कस करेंगे कि फ्लेचर और हॉर्विट्ज क्या कहते हैं। हमने अभी मर्डॉक और पार्सन एंड बेल्स डिस्कस कर लिया, अब इसके बाद हम फ्लेचर और हॉर्विट्ज को आगे डिस्कस करेंगे। कोर एंड पेरिफेरल फंक्शंस, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद द लेक्चर नंबर 2 ऑफ द फैमिली। First of all, we need to understand few things, few key terms before moving forward. Okay. The first key term is in household. कोई भी इंसान कहीं पे भी रहता हो वो हाउसहोल्ड कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? हाउसहोल्ड, ठीक है। एंड दैट हाउसहोल्ड देयर आर 3 different types of household. सही है। Number 1 is single person household, फिर हमारे पास कपल हाउसहोल्ड एंड कम्युनल हाउसहोल्ड। सिंगल पर्सन हाउसहोल्ड, कपल हाउसहोल्ड एंड कम्युनल हाउस। कम्युनल हाउसहोल्ड का मतलब होता है मल्टीपल अनरिलेटेड पीपल, यानी कि देयर आर डिफरेंट रिलेटेड इंडिविजुअल्स, ठीक है। मल्टीपल अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स लिविंग टुगेदर। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है। Whenever we talk about this idea of communal household, it means what? कि भाई there are several unrelated individuals living together. We used to call it communal household. ठीक है। Whenever we talk about this idea कि अब household किस तरह से family में convert होगा, ठीक है, we need sort of marriage. हमें क्या करना पड़ता है बेटा? Marriage, ठीक है। अब हमारे पास मैरिज की मल्टीपल टाइप्स होती हैं, ठीक है। मैरिज इज समथिंग जिसके अंदर स्टेट इज गोइंग टू बी अ विटनेस टू सी कि 2 इंडिविजुअल्स आर अलाउड टू हैव अ सोशल रिलेशनशिप, यानी कि सोशल पार्टनरशिप जिसको हम कह सकते हैं, इट्स अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ सोसाइटी, ठीक है। मैरिज की जो फर्स्ट टाइप होती है वो होती है मोनोगैमी। इन साउथ एशियन फैमिलीज, क्रिश्चियन फैमिलीज, ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोगैमी एग्जिस्ट करता है, सही है। 1 मेल 1 फीमेल। फिर इफ वी मूव फॉरवर्ड वी आर हैविंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीगैमी। इट मीन्स मल्टीपल पार्टनर्स। पॉलीगैमी स्टैंड्स फॉर मल्टीपल पार्टनर्स। वो होता है ना, पॉलीक्लिनिक होता है, इट मींस मल्टीपल डॉक्टर्स उसके अंदर होते हैं, ठीक है। पॉलीगैमी मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। पॉलीगैमी का एक टाइप होता है पॉलीगाइनी, सॉरी, पॉलीगाइनी स्टैंड्स फॉर 1 मेल मल्टीपल फीमेल, अरेबिक स्टाइल ऑफ लिविंग। हाँ ना भाई, ठीक हो गया। फिर आ जाते हैं हमारे पास पॉलीएंड्री, थोड़ा सा खतरनाक गेम है इनका। वो है 1 फीमेल मल्टीपल मेल्स। अच्छा, ये कहां पे होता है? ये उन ट्राइबल सोसाइटीज में होता है जिन्होंने वचन लिया हुआ होता है कि हम ट्राइब के बाहर शादी नहीं करेंगे, रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करेंगे, और उस ट्राइब के अंदर फीमेल कम होती है, मेल ज्यादा हो जाते हैं। नयार ऑफ मालाबार, तिब्बत के कुछ ट्राइब्स हैं, एम आई राइट? दे आर हैविंग पॉलीएंड्री विद इन देयर कम्युनिटीज। समझ में आई बात? नयार ऑफ मालाबार एक कम्युनिटी है जो इंडिया में होती है, दे आर हैविंग पॉलीएंड्री सीन्स, ठीक है। फिर हम अब देखो एवरीवन हियर,
जब मैरिज, पॉलीगाइनी, GYNA, पॉलीएंड्री, POLYANDRY, सही है। अब जो हमारे पास मैरिज का सिनेरियो आता है, ठीक है, मैरिज के बाद क्या होगी बेटा, फैमिली फॉर्मुलेट हो जाएगी, सही है। अब मैरिज के बाद फैमिली कितने तरह की होगी, कैसे होगी, इस बात को जरा सा समझते हैं, सही है। सबसे पहले हमारे पास जो फैमिली की टाइप आती है उसको कहते हैं हम एक्सटेंडेड फैमिली। क्या कहते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो मैरिज में मैंने ये जो अभी डिस्कस किया है आपके साथ, ये मैंने हेट्रोसेक्सुअल नॉर्म में डिस्कस किया है। किसमें डिस्कस किया है बेटा, हेट्रोसेक्सुअल नॉर्म में। अगर मैं होमोसेक्सुअल नॉर्म की बात करूं आपके पास, तो उसके अंदर होती हैं कुछ सोसाइटीज के अंदर, उस सोसाइटीज के अंदर सिविल पार्टनरशिप्स होती हैं। क्या होती हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, शादी हो गई और लोगों ने फैसला किया कि हम एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर रहेंगे। एवरीवन हियर ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। एक्सटेंडेड फैमिली की मल्टीपल टाइप्स होती हैं। एक होती है बेटा वर्टिकल एक्सटेंडेड फैमिली, जिसके अंदर क्या होता है बेटा, ग्रैंड पेरेंट्स, 3 जनरेशंस लिविंग टुगेदर, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल एक्सटेंडेड फैमिली। फिर होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सटेंडेड फैमिली, मल्टीपल brothers and sisters living with their families, ठीक है। ये वो हॉरिजॉन्टल एक्सटेंडेड फैमिली जिसको हम ज्वाइंट फैमिली भी कहते हैं, इसमें बहुत सारी मोहब्बतें होती हैं, ठीक है। इतनी मोहब्बतें होती हैं कि बांट के खत्म हो जाती है, वो मोहब्बत यानी कि बस मौजूद रहती है कहीं ना कहीं, ठीक है। अच्छा, अब वो जो अंकल्स आंटीज लिविंग टुगेदर, ठीक है। फिर अगर होता है, अब इसमें बहुत सारा फायदा होता है ना, बच्चे के एक माँ बाप नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, जिसका दिल चाहता है उसके हुक्म चला लेता है, ठीक है। तो अब इस सिनेरियो को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अब एक्सटेंडेड फैमिली की भी ना मल्टीपल टाइप्स होती हैं। क्या होती है मेरा बेटा, मल्टीपल टाइप्स होती हैं। देखिए एवरीवन हियर, एक होती है एक्सटेंडेड फैमिली जिसको हम कहते हैं क्लासिक एक्सटेंडेड फैमिली। क्या कहते हैं बेटा, अब चाहे वर्टिकल एक्सटेंडेड फैमिली हो या हॉरिजॉन्टल हो, इफ दे आर लिविंग टुगेदर, it could be considered as classic extended family. It could be considered as classic extended family. Is it clear to you all? फिर होती है हमारे पास modified extended family, not living together but technologically कनेक्टेड। ये साथ नहीं रहते, स्काइप कॉल के ऊपर साथ रहते हैं। समझ में आई बात? सही है। नॉट लिविंग टुगेदर बट टेक्नोलॉजिकली कनेक्टेड, ठीक है। अब ये क्या हुआ बेटा, एक्सटेंडेड फैमिली की हमारे पास मल्टीपल सॉर्ट ऑफ टाइप्स एक्सट्रैक्ट हो गई। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है। फिर मैं इस कहानी को थोड़ा सा आगे आपके साथ लेके चलता हूं, ठीक है। अब लोग एक्सटेंडेड फैमिली से निकले, उन्होंने कहा हमने फैमिली टाइप को अपनी चेंज करना है। अब जब लोग निकलते हैं, इफ यू मूव फॉरवर्ड, एक्सटेंडेड फैमिली के बाद जो हमारे पास फैमिली टाइप आती है, जो कि कॉमन टाइप्स हैं, अभी हम और भी फर्दर टाइप्स पर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम बेसिक कॉमन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है।
Number one is what? Nuclear family, most prominent family form. नहीं बेटा ये अलग है ना, मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूं, ठीक है. अब न्यूक्लियर फैमिली क्या कहती है? इट्स अ 2 जनरेशनल फैमिली. Two-generational family. It means, it says parents and children. ठीक है. It's considered as the most common family form. It's considered as the most common family form because में family functions कहा जाता है बहुत effectively perform हो रहे होते हैं. ठीक है. अब न्यूक्लियर फैमिली के बाद एक और कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं. खुदा ना खास्ता डिवोर्स हो जाए, सही है, खुदा ना खास्ता डिवोर्स के बाद देर आर मल्टीपल टाइप ऑफ फैमिली मैरिज स्ट्रक्चर्स. ठीक है. डिवोर्स और डेथ ऑफ द पार्टनर. अभी बहुत कुछ आएगा न्यूक्लियर फैमिली का, टेंशन नॉट. ठीक है. नहीं अभी छोड़िए. डिवोर्स या डेथ ऑफ द पार्टनर के बाद देर आर मल्टीपल टाइप ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर्स इमर्ज. ठीक है. लाइक सिंगल पर्सन हाउस होल्ड के इंसान अकेले रहने का फैसला कर ले. सही. लोन पेरेंट अलग होता है, लोन पर्सन अलग होता है. लोन पर्सन, सिंगल पेरेंट पर्सन अलग है. लोन पेरेंट अब वो ये है जो मैं लोन लिखवा रहा हूं. इट्स ऑल अबाउट सिंगल पेरेंट फैमिली स्ट्रक्चर्स. ठीक है. सिंगल पेरेंट फैमिली. थर्ड वन इज कोहैबिटेशन. लिव इन रिलेशनशिप में रहने का बंदा फैसला कर ले, भाई अब मैंने शादी नहीं करनी, बहुत टेंशन हो रही है मुझे जिंदगी के अंदर. ठीक है. फिर होता है रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिली. ठीक है. यानी कि वन और बोथ पार्टनर्स आर सेकेंडली मैरिड. वन और बोथ पार्टनर्स आर सेकेंडली मैरिड. ठीक है. अब दिस इज ऑल अबाउट, मैंने आपके सामने बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर्स रख दिए फैमिली स्ट्रक्चर्स के हवाले से कि व्हाट आर दोस फैमिली स्ट्रक्चर्स. ठीक है. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम ये देख रहे हैं डिक्लाइन ऑफ फैमिली फंक्शंस भी आ रहा है. क्या आ रहा है बेटा? डिक्लाइन ऑफ फैमिली फंक्शंस भी विजिबल है. ठीक है. जिसमें हमने पार्सन्स एंड बेल्स को डिस्कस किया था. ठीक है. अब उसी कहानी के हिसाब से अब हम आगे बढ़ते हैं कि दुनिया के अंदर, दुनिया में क्या हो रहा है बेटा? दुनिया के अंदर डिक्लाइन ऑफ फैमिली फंक्शंस हो रहे हैं. सही है. पहले जमाने की फैमिलीज एक्सटेंडेड फैमिलीज हुआ करती थी और वो मल्टी फंक्शनल होती थी. क्या होती थी बेटा? मल्टी फंक्शनल. बट नाउ द फैमिली फंक्शंस आर गोइंग टू बी डिक्लाइन. ठीक है. अब इसी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं. हमारे पास फ्लेचर की थ्योरी आती है. फ्लेचर के मुताबिक फैमिली के दो तरह के फंक्शंस हैं. नंबर वन इज कोर फंक्शंस. These were the functions could only be performed by the family. Only be performed by the family. Only be performed by the family. ठीक है. फिर हमारे पास क्या आता है? फिर होते हैं हमारे पास पेरिफेरल फंक्शंस. Previously performed by the family, but now performed by other social institutions. ठीक है. Previously performed by the family, but now these functions are performed by other social institutions. ठीक है. पहले फैमिली से परफॉर्म होते थे, अब ये सारे फंक्शंस जो हैं अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस ही परफॉर्म करते हैं. ठीक है. जब मैं इस चीज को अंडरस्टैंड करता हूं, ठीक है, कि these functions were performed by previously performed by the family, but now these functions are performed by
अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा और बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले ज़माने में एजुकेशन का फंक्शन था, ठीक है, इट वॉज परफॉर्म बाय द फैमिली, बट नाउ दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। फिर हमारे पास पहले हेल्थ केयर का फंक्शन था, सही है, पहले क्या था बेटा, हेल्थ केयर का फंक्शन था, ठीक है। अब नाउ दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय हॉस्पिटल्स। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल सी बात है। फ्लेचर की ये थ्योरी कहती है देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ फैमिली फंक्शन, देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ फैमिली फंक्शंस आर डिक्लाइनिंग इन कंटेम्पररी वर्ल्ड। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है। फिर हमारे पास, लेकिन ये फंक्शनलिस्ट हैं, फैमिली के फंक्शन से इनकार नहीं कर सकते, फैमिली के फंक्शन से इनकार नहीं कर सकते। इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर देम टू डिनाई अबाउट द फैमिली फंक्शंस। If we move forward, we are having another theorist with the name of Horvitz. क्या नाम है इनका बेटा? Horvitz is a new functionalism, all about new functionalism. न्यू फंक्शनलिस्ट क्या होता है बेटा? ये कंटेम्पररी वर्ल्ड के फंक्शनलिस्ट हैं। क्या है मेरा बेटा? देखो, ट्रेडिशनल फंक्शनलिस्ट की बहुत सारी बातें आपको एब्सोल्यूट लग सकती हैं कि भाई ये चीज़ तो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, ये जो बात बोल रहा है, ठीक है। बट न्यू फंक्शनलिस्ट उस जो फ्लॉ है ना ट्रेडिशनल फंक्शनलिस्ट का, उस फ्लॉ को मैनेज करते हैं, सही है। उस फ्लॉ को कैसे मैनेज करते हैं? एक सेकेंड। देखिए, ट्रेडिशनल फंक्शनलिस्ट की बहुत सारी बातें एब्सोल्यूट हो सकती हैं, यार ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन न्यू फंक्शनलिस्ट उसी चीज़ के अंदर एक ब्रिज क्रिएट करते हैं कि कंटेम्पररी वर्ल्ड के अंदर जो जो इशूज़ हैं, जो तमाम चीज़ें, उसको मैनेज करने की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। न्यू फंक्शनलिज्म के अंदर मेरा बेटा हमारे पास जो थ्योरिस्ट आते हैं उनका नाम है हॉर्विट्ज, ठीक है। और हॉर्विट्ज ने कहा था फैमिली इज अ ब्रिज, फैमिली इज अ ब्रिज बिटवीन माइक्रो to macro world. Family is a bridge between micro to macro world. Micro to macro world का मतलब क्या होता है बेटा? एक फैमिली की एक इंडिविजुअलिस्टिक छोटी दुनिया है। फैमिली क्या है? एक इंडिविजुअलिस्टिक छोटी दुनिया है, ठीक है। मैक्रो वर्ल्ड क्या है? वर्क प्लेस का एक बड़ी दुनिया है, सही है। फैमिली क्या करती है? आपको बहुत सारी चीजें सिखाती है, ठीक है। जैसे कि फैमिली आपको सिखाती है रूल लर्निंग, ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज। जब फैमिली आपको ये तमाम चीजें सिखाती है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है? यू आर गोइंग टू बी प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द मैक्रो वर्ल्ड ऑफ द सोसाइटी, सही है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मैक्रो वर्ल्ड। इज इट क्लियर टू यू ऑल? सही है। अच्छा, अब देखो, मैंने अभी तक आप लोगों के साथ जो जो थ्योरीज डिस्कस किए हैं, चाहे वो लेक्चर नंबर 1 में किए हो, चाहे वो लेक्चर नंबर 2 में किए हो, ठीक है। मैं आपके सामने एक मरतबा उसका रिकैप दे देता हूं, दैट वुड बी इजी फॉर यू, कि आपके लिए उसको अंडरस्टैंड करना काफी आसान हो जाएगा। Whenever we talk about the functionalist ideas about the family, whenever we talk about the functionalist ideas about the family, ठीक है, first of all we are having Murdoch's definition of the family. According to the Murdoch's definition of the family, adults of both sexes living together, having socially approved sexual relationship, having kids own or adopted. And then we evaluated that definition with the help of postmodern ideas related to the family, ठीक है. And then we discuss about the functional prerequisites given by the Murdoch in the form of sexual control, primary socialization, reproduction, and economic provision. Okay? And then we discuss about the idea like in over the period of time, the family functions are declining, but there are some basic or irreducible functions given by the Parsons and Bales, like primary socialization and stabilization of adult personalities. Is it clear to you all? And then now we discuss about the idea of Fletcher. According to the Fletcher, there are core functions and peripheral functions. There are core functions and peripheral. Core functions are functions which were previously performed by the family, and now it is also performed by the family. Like primary socialization. Primary socialization is a function which is considered to be the core function of the family. And peripheral function are the functions which were previously performed by the family, but now these functions are performed by other social institutions. ठीक है?
अब को फंक्शंस में आप अपने पास प्राइमरी सोशलाइजेशन को मेंशन कर लें, दैट वुड बी गुड फॉर यू. And Howard discuss about the micro and macro role of the family structures, like how the family is going to prepare an individual to understand the macro world and macro world issues of the society. Is it clear to you all? मैंने आपको अभी पूरी टाइप्स ऑफ द फैमिली स्ट्रक्चर्स बताइए, कौन कौन से टाइप्स ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, अब हम जरा सा फंक्शनलिस्ट के आइडियाज को डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ द फैमिली स्ट्रक्चर्स के हवाले से. ठीक है, हमारे पास आर्गुमेंट आता है बेटा पार्सन्स एंड गुड का. इस आर्गुमेंट को कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है, इसको कहते हैं बेटा फिट थीसिस. क्या कहते हैं बेटा? सो फिट थीसिस की अगर हम बात करते हैं, एवरीवन हियर देखिए फिट थीसिस क्या चीज है. ठीक है, फिट थीसिस के आइडियाज क्या कहते हैं बेटा? ये वो आर्गुमेंट है जो कहता है फिट थीसिस का मतलब कौन सा फैमिली स्ट्रक्चर किस सोसाइटी के लिए फिट होता है. एम आई राइट? सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं इस फिट थीसिस की एलिमेंट को. देखिए याद रखिएगा, इस चीज के लिए बेसिक्स का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है. देखिए, according to the Parsons and Godin, there was a pre-modern society. जब हम प्री मॉडर्न सोसाइटी की बात करते हैं बेटा, ये कैसी सोसाइटीज हैं? ये वो सोसाइटीज हैं जो कि थियोलॉजिकल हैं. थियोलॉजिकल का मतलब होता है रूल ऑफ रिलीजन, यानी कि अपने रिलीजन के हिसाब से फैसले करती हैं. सही है. अब मैं अगर आगे लेके चलता हूं इस चीज को, इन प्री मॉडर्न सोसाइटीज वर थियोलॉजिकल. सही है. दे यूज्ड टू डू एग्रीकल्चरल वे ऑफ लिविंग. एग्रीकल्चरल का मतलब क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर के साथ अटैच थे. ठीक है, इस एरा के अंदर बेटा जो फैमिलीज थी वो मल्टी फंक्शनल फैमिलीज थी. क्या थी बेटा? मल्टी फंक्शनल. ठीक है, ऐसी फैमिलीज हु आर डूइंग मल्टीपल फंक्शंस, हु आर डूइंग मल्टीपल फंक्शंस. मल्टी फंक्शनल फैमिलीज के साथ साथ क्या क्या एलिमेंट था? दीज फैमिलीज वर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव. जितने बच्चे होते थे सारे फील्ड्स में काम किया करते थे. सही है. लेबर इंटेंसिव. ठीक है, लेबर इंटेंसिव के साथ साथ दीज फैमिलीज वर किनशिप बेस्ड, यानी कि एक रिश्ता होता था. अब ऑल दीज एलिमेंट्स वर परफॉर्म बाय विच फैमिली स्ट्रक्चर? इसीलिए कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द फिट थीसिस, एक्सटेंडेड फैमिलीज वर द डोमिनेंट फैमिली सेटिंग. डोमिनेंट फैमिली सेटिंग, यानी कि एक्सटेंडेड फैमिलीज जो हैं वो डोमिनेंट फैमिली सेटिंग्स के तौर पे काउंट की जाएंगी. सही है. सही है, एक्सटेंडेड फैमिलीज जो हैं वो डोमिनेंट फैमिली सेटिंग्स के तौर पे काउंट की जाएंगी. इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ? सिनेरियो चेंज हो गया. जब दुनिया के अंदर इन प्री मॉडर्न सोसाइटीज द फैमिलीज वर मल्टी फंक्शनल, द प्री मॉडर्न सोसाइटीज वर थियोलॉजिकल हैविंग रूल ऑफ रिलीजन. थियोलॉजिकल सोसाइटीज कौन सी होती हैं? जिनके पास रूल ऑफ रिलीजन होता है, यानी कि रिलीजन को एज अ कोर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग देख रहे होते हैं. देन वो एग्रीकल्चर सोसाइटी होती हैं, प्राइमरी सेक्टर बेस्ड सोसाइटीज होती हैं. सही है. अब वो सोसाइटीज में फैमिलीज और मल्टी फंक्शनल, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव थी फैमिलीज जो थी. दे वर परफॉर्मिंग सो मेनी टास्क. सही है. दे वर वर्किंग इन द फील्ड्स. सही है. दे वर लेबर इंटेंसिव एंड दे वर किनशिप बेस्ड. दे वर लेबर इंटेंसिव एंड दे वर किनशिप बेस्ड. ठीक है.
इस पूरे मैकेनिज्म के थ्रू हम ये कह सकते हैं द एक्सटेंडेड फैमिलीज वर द डोमिनेंट फैमिली सेटिंग इन दोज सोसाइटीज, द एक्सटेंडेड फैमिलीज वर द डोमिनेंट फैमिली सेटिंग इन दोज सोसाइटीज। उन सोसाइटीज में एक्सटेंडेड फैमिलीज जो थी वर द डोमिनेंट फैमिली सेटिंग्स, ठीक है। फिर दुनिया चेंज होना शुरू हो गई, ठीक है। जब दुनिया चेंज होती है मेरा बेटा, तो दुनिया प्री मॉडर्न से मॉडर्न सोसाइटी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। अब मॉडर्न सोसाइटीज क्या होती है मेरा बेटा, दे वर हैविंग, हम इस सोसाइटी को पॉजिटिव सोसाइटी भी कहते हैं, रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक जनरेट होता है। अब इस पूरे मैकेनिज्म में रैशनलाइजेशन डेवलप हो रही है। रैशनलाइजेशन या रैशनलाइज वे ऑफ थिंकिंग था, जिसमें लॉजिकल वे के अंदर अंडरस्टैंड करने की बात हो रही थी सोसाइटी के अंदर, ठीक है। रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक, ठीक है। अब इस पूरे मैकेनिज्म के अंदर मॉडर्न सोसाइटीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। क्या होगी मेरा बेटा? इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसकी वजह से सेकेंडरी सेक्टर जो है सोसाइटी के अंदर डेवलप होगा। साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग, लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। अब जब सोसाइटीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है बेटा, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर अर्बनाइजेशन होती है। क्या होती है बेटा? अर्बनाइज। इट्स मोर अबाउट, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन it's more about urbanization. Urbanization means expansion of urban areas. इंडस्ट्रीज लग रही होती हैं तो एक्सपेंशन ऑफ अर्बन एरियाज, लोग जो हैं अर्बन सोसाइटीज का रुख करते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ अर्बन एरियाज, ठीक है। अब जब अर्बनाइजेशन हो रही होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही होगी, अब इस पूरे मैकेनिज्म के अंदर होता क्या है बेटा? ज्योग्राफिकल मोबिलिटी होती है। ज्योग्राफिकल मोबिलिटी, जिसको हम कहते हैं रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन का मतलब है लोग रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में शिफ्ट हो रहे थे, बिकॉज अर्बन एरियाज में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, इंडस्ट्रियल मशीन लग रही थी, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही थी, ठीक है। अब एक तो ज्योग्राफिकल मोबिलिटी है। अब ज्योग्राफिकल मोबिलिटी, इफ यू आर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो आप बड़ी फैमिली के साथ मूव करेंगे, छोटी फैमिली के साथ मूव करेंगे? छोटी फैमिली के साथ मूव करेंगे, ठीक है। अब अगर डेफिनेट सी बात है, यानी यू नॉट मूव विद लॉट ऑफ स्टूडेंट, लॉट ऑफ फैमिली मेंबर्स, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज क्या जनरेट हुई? ज्योग्राफिकल मोबिलिटी के अलावा एक और चीज उस एरा में जनरेट हुई, नेपोटिज्म जनरेट हुआ। नेपोटिज्म कि आप अपनी इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अर्बनाइजेशन के अंदर हुआ क्या? डिक्लाइन ऑफ फैमिली फंक्शंस। फैमिली फंक्शंस के अंदर डिक्लाइन आ गया, बिकॉज अर्बन एरियाज के अंदर एजुकेशन जो है वो स्कूल्स एंड कॉलेजेस प्रोवाइड करेंगे, सही है। हॉस्पिटल्स होंगे हेल्थ केयर के लिए, ठीक है। अब इन तमाम चीजों की वजह से अकॉर्डिंग टू द पार्सन्स एंड गोडफ्रिड थीसिस, ठीक है, उनके मुताबिक न्यूक्लियर फैमिली emerged as dominant family setting. यानी कि it was emerged as dominant family setting because it fits the requirement of modernity. It fits the requirement of, यानी कि वो मॉडर्निटी की रिक्वायरमेंट्स को फिट कर रहे थे। क्या कर रहे थे बेटा? मॉडर्निटी की रिक्वायरमेंट को फिट कर रहे थे। मॉडर्निटी की रिक्वायरमेंट क्या थी? डिक्लाइन ऑफ फैमिली फंक्शंस हैं, फैमिली शुड परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, ठीक है। अर्बनाइजेशन हो रही थी, ज्योग्राफिकल मोबिलिटी हो रही थी, द पीपल मूविंग फ्रॉम रूरल टू द अर्बन एरियाज, नेपोटिज्म हो रहा था, डिक्लाइन ऑफ फैमिली फंक्शन हो रहा था, फैमिली के फंक्शंस स्पेशलाइज्ड हो गए। क्या होगा मेरा बेटा? स्पेशलाइज्ड। फैमिलीज वर प्रीवियसली परफॉर्मिंग मल्टी फंक्शनल रोल, but afterwards the family role become more specialized. फैमिली का काम एक स्पेशलाइज्ड फंक्शंस के हिसाब से बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन में
जब अर्बनाइजेशन, बेटा हॉस्पिटल्स होंगे अर्बन एरियाज के अंदर तो फैमिली का हेल्थ केयर का रोल खत्म हो गया, पार्क्स होंगे, लेजर एक्टिविटी का रोल खत्म हो गया, फैमिली के स्कूल्स एंड कॉलेजेस होंगे, एजुकेशन का रोल खत्म हो गया। अच्छा, अब वो अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज होती हैं, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली क्या बात समझ में आती है, अकॉर्डिंग टू द फिट थीसिस, हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ था, अकॉर्डिंग टू द फिट थीसिस दिस वाज द केस इन द प्री मॉडर्न सोसाइटीज, एक्सटेंडेड फैमिलीज वर द डोमिनेंट फैमिली सेटिंग, आफ्टर मॉडर्निटी न्यूक्लियर फैमिली इमर्ज एज द डोमिनेंट फैमिली सेटिंग्स। इज इट क्लियर टू यू ऑल? अब देखें, हम इसके आगे जाके हम इसकी इवैल्यूएशन करेंगे, हम करेंगे आर्गुमेंट्स अगेंस्ट फिट थीसिस। हम क्या करेंगे बेटा? आर्गुमेंट्स अगेंस्ट। मैंने आपसे क्या कहा? हम हर आर्गुमेंट का अपोजिशनल आर्गुमेंट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल नाउ हमने अगर फंक्शनलिज्म की बात करें तो हमने मर्डॉक की डेफिनेशन ऑफ द फैमिली की, जिसके मुताबिक एडल्ट्स ऑफ बोथ सेक्सेस लिविंग टुगेदर, हैविंग सोशली अप्रूव्ड सेक्सुअल रिलेशनशिप, हैविंग किड्स एंड ओन एंड अडॉप्टेड, ठीक है। फिर हमने उसकी पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी के हवाले से इवैल्यूएशन जनरेट की, ठीक है। And then we move to the functional prerequisites given by the Murdoch, like sexual control, primary socialization, economic provision, and reproduction. ठीक है? And then we move towards the basic or irreducible function given by the Parsons and Bales, which was primary socialization and stabilization of adult personalities. And then again we move towards the Fletcher's idea of decline of family functions, core and peripheral functions. Core functions are the function which can only be performed by the family, like primary socialization. Peripheral functions are the functions which were previously performed by the family, but now these functions are performed by other social institutions, like education performed by schools and colleges. Peripheral functions, okay? And healthcare is performed by schools and hospitals, okay? And then we discuss about the Horvitz idea of micro and macro families, a bridge between micro world to the macro world. And now we discuss about the idea of Parsons and Gord idea of fit thesis. In the pre-modern society, the families are multifunctions, labor-intensive, economically productive, and kinship-based. So the extended family was the dominant family setting over there. But afterwards, after industrialization, due to geographical mobility, urbanization, and enhancement of nepotism, and decline of family functions, the nuclear family were emerged as a dominant family setting. Whenever we talk about the Marxist perspective related to the family, first we need to understand what the Marxism is all about. Conflict structuralism. Conflict structuralism are against the existing social order, and social institutions. It means, according to the Marxists, they are against the existing social order and social institutions. Why they are against the existing social order and social institutions? Because according to the Marxists, social institutions promote capitalism and class inequality. What is capitalism or class inequality? We need to understand this thing well. Like, capitalism is a mechanism where in which we can say this thing: there is a capitalist class, owner of means of production, and there is a working class who are working under them. Am I right? And upper class or the capitalist class remain in the upper position, and the working class remain in the working position. Say, it means the whole idea rotates around the phenomena in which, like, inequality is a natural phenomena. Family is one of the most important social institutions in the world. So the family is also considered as agent of capitalism. ठीक है? Family, according to the Marxists,
family is also an agent of capitalism. ठीक है, द फैमिली इज ऑल्सो एन एजेंट ऑफ कैपिटलिज्म. जो फैमिली है वो भी कैपिटलिज्म की एजेंट कंसिडर करता है मार्क्सिस्ट. सही है, यानी कि अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं. मार्क्सिज्म इज फॉर सोशल चेंज. मार्क्सिज्म इज फॉर सोशल चेंज. द फैमिली इज सपोर्टिंग द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर. समझ में आई बात? इधर देखो, मार्क्सिज्म का ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? इधर देखिएगा, मार्क्सिज्म का ऑब्जेक्टिव है, इनका ऑब्जेक्टिव आता है बेटा क्या? दे डिमांड फॉर सोशल चेंज. दे डिमांड फॉर सोशल change. On the other hand, family is supporting existing social order. The family is supporting existing social order. अब जब फैमिली एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को सपोर्ट करेगी, समथिंग लाइक दैट, Marxists are trying to open the door and the family is a restraining force. और फैमिली ने क्या किया हुआ? कुंडी लगा के रखी हुई, वो सोशल चेंज आने नहीं दे रहा. फैमिली इज नॉट गोइंग टू अलाउ द सोशल चेंज. जब वो सोशल चेंज नहीं आने दे रहा तो मार्क्सिस्ट को वो चीज बहुत बुरी लगेगी. मार्क्सिस्ट को वो चीज बहुत बुरी लगेगी. यहां तक बात समझ में आती है? नाउ द क्वेश्चन इज, the idea is quite simple of the capitalism, like upper class remain in the upper class, working class remain in the working class. सही है, upper class remain in the upper class, working class remain in the working class. ठीक है, अब जब ये मैकेनिज्म बिल्ड हो जाता है, ठीक है, कि अपर क्लास अपनी पोजीशन पे और वर्किंग क्लास अपनी पोजीशन पर है, तो हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, हाउ टू एक्सप्लेन इट, इट्स अ क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, अब जरा समझिएगा. फैमिली, एक सेकेंड, फैमिली सपोर्ट्स capitalism. So whenever we talk about the idea of family related to the capitalism, according to Marxists, the family is an agent of capitalism. The family is an agent of capitalism. Family जो है वो capitalism की क्या है बेटा? Agent. ठीक है, देखो फैमिली, अपर क्लास की जो फैमिलीज होती हैं वो अपने बच्चों को अलग तरीके से ट्रेन करती हैं. वर्किंग क्लास की फैमिलीज अपने बच्चों को अलग तरीके से ट्रेन करती हैं. अब ऑटोमेटिकली जब डिफरेंशिएशन आता है, जैसे बहुत सिंपल सी बात है कि अपर क्लास रिस्क टेकिंग एबिलिटी ट्रांसफर करती है अपनी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, इनहेरिटेंस ट्रांसफर करती है. वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास पर्टिकुलरली, वो खौफ ट्रांसफर करती है. वो क्या करती है? खौफ ट्रांसफर. ठीक है, अब बच्चे को सारी जिंदगी डर लगा रहता है कि अगर मेरा ग्रेड अच्छा नहीं आया तो मेरे अम्मा पापा बहुत मारेंगे. अब क्या हुआ? उसकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बिल्कुल आपने क्या कर दी? जीरो. जब वो जीरो कर दी तो फिर वो ऑटोमेटिकली अपर क्लास के अंदर सस्टेन ही नहीं कर पाता, वो मूव ही नहीं कर पाता. उसके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन ये होता है मिडिल क्लास के लिए कि वो अपने आप को एज अ प्रोफेशनल जो है किसी ना किसी जगह के अंदर मनवा सके. समझ आई बात? अपर क्लास क्या मटीरियल कैपिटल भी देता है, कल्चरल कैपिटल भी देता है, सोशल कैपिटल भी देता है. सही है, अभी हम इस चीज़ को, तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे. तो होता क्या है, सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी का मैकेनिज्म है, वो इसी वजह से चल रहा है कि अपर क्लास रिमेन इन द अपर क्लास एंड वर्किंग क्लास रिमेन इन द वर्किंग क्लास. वर्किंग क्लास सोशली मोबाइल होके सोशल मोबिलिटी गेन करके अपर क्लास में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहे. समझ आई बात? All the social institutions are supporting the capitalism in this way, but the family is one of the essential institutions used to support this mechanism. If I'm going to explain it further, सबसे पहला जो ground होता है, that is ideological ground. Ideological ground. Ideological ground का मतलब क्या है कि family जो है capitalist ideology transfer करती है. Am I right? Transfer of capitalist ideology
like inequality is a natural phenomena not created by the capitalist. Inequality is a natural phenomena. ठीक है. To explain the ideological support to the capitalism by the family, we are having a theorist with the name of Althusser. अल्थूजर ने एक आइडिया दिया था, आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus. According to Althusser, cultural institutions like family, education, media, religion, all these instruments are working as an apparatus to transform the capitalist ideology and to maintain the capitalist ideology within the society. Is it clear to you all? Actually, they act as an apparatus to maintain capitalist order. This is all about ideological state apparatus. कि सोसाइटी के अंदर बिलीफ जो होते हैं, कैपिटलिस्ट बिलीफ जो होते हैं, वो फैमिली ट्रांसफर कर रही होती है अपनी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर. एंड द फैमिली कुड बी कंसिडर्ड एज फैमिली इज रिप्रोड्यूसिंग नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वर्कर्स. एम आई राइट? फैमिली क्या कर रही होती है? फैमिली रिप्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वर्कर्स. सही है. The next phenomena is quite simple. The family supports capitalism economically. ठीक है. इकोनॉमिक सपोर्ट बहुत सिंपल सी बात है. दुनिया की सारी इंडस्ट्रीज, मेजर इंडस्ट्रीज जबकि मैं कह सकते हैं, किसी ना किसी लेवल पे फैमिली के साथ कनेक्टेड है. उनके ब्रांड्स फैमिली के साथ कनेक्टेड हैं. इस चीज को हम कहते हैं कंज्यूमर कल्चर. क्या कहते हैं बेटा? आपके घर पे जो ब्रांड्स आते हैं, वो ब्रांड्स एक्चुअल के अंदर किसको सपोर्ट कर रहे होते हैं? कैपिटलिस्ट को, इंडस्ट्री ओनर्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं. इस चीज को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं. हमारे पास थ्योरिस्ट आते हैं, उनका नाम है ज़र्ट्स्की. उनके मुताबिक फैमिली इज अ टारगेट ऑफ एडवर्टाइजिंग. द फैमिली इज अ टारगेट ऑफ एडवर्टाइजिंग. तुम टीवी खोलो, जितने एड्स तुम देखोगे, दे आर टारगेटिंग द फैमिली. अम्मा तल्लों में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ. सही है. हर चीज मिजान में अच्छी लगती है, चाहे वो कोक का ऐड हो, सिरिलैक, नेस्ले बुनियाद. सही है. ऑल द एड्स आर टारगेटिंग द फैमिली. एक्चुअली दोज ब्रांड्स आर पेनिट्रेटिंग टू बी द पार्ट ऑफ द फैमिली मेंबर. दे जस्ट वांट टू बी द पार्ट ऑफ द फैमिली मेंबर. वो बस एक फैमिली मेंबर का पार्ट बनना चाहते हैं. सही है. जब वो फैमिली मेंबर का पार्ट बनना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा मेरा बेटा, कि वो फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं. समझ आए मेरी बात? जब वो फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? द फैमिली बिकम अ टारगेट ऑफ एडवर्टाइजर. सही है. अब मैं इस कहानी को थोड़ा आपके सामने फर्दर लेवल पे लेके आगे चलता हूं. ठीक है. अब देखें थर्ड वे जिसके थ्रू फैमिली सपोर्ट्स कैपिटलिज्म की जब हम बात करते हैं. ठीक है. द थर्ड एलिमेंट इज पॉलिटिकल सपोर्ट. घर पे जाके एक्सपेरिमेंट कीजिएगा. सही है. घर पे जाइएगा और अम्मी को बताइएगा कि मैं किसी एक्टिविस्ट मूवमेंट का पार्ट बन गई हूं या बन गया हूं, और इस मुल्क में मैं इनकलाब लाके ही दम लूंगा. और अगर खतरनाक एक्सपेरिमेंट करना हो तो घर पे जाके बोलिएगा मैं पीटीआई का मेंबर बन गया हूं और घर पे मैं पीटीआई का बड़ा वाला झंडा लगाऊंगा. घर वाले क्या बोलेंगे आपको? हाँ हाँ, क्या कहेंगे बेटा?
क्या कह रहे हैं, खुशी खुशी करवाएंगे ये काम? हाँ अच्छा, और नहीं, यानी कि वो आपकी मूवमेंट की एबिलिटी को, कोई सोशल चेंज लाने की कैपेबिलिटी को 100% सपोर्ट करेंगे, उनको डर लगना शुरू हो जाएगा। सही है, वो सीरियस या तो सीरियस लेंगे, आपकी हरकतें ऐसी नहीं होंगी ना बेटा फिर, ठीक है। तो बात यह है कि अगर आपको सीरियस लिया जाता होगा तो उनकी मोहब्बत जाग जाएगी, ठीक है। और आपको 2 अदद थप्पड़ पड़ेंगे, बोलेंगे इंसान बन के अंदर कमरे में जाओ, घर से बाहर मत निकलना, ठीक है। बिकॉज फैमिली कहा जाता है एवरीवन हियर, अंडरस्टैंड दिस थिंग, द फैमिली इज एन स्टेबलाइजिंग फोर्स। स्टेबलाइजिंग फोर्स, बिहाइंड सोशल ऑर्डर। जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म चल रहा है उस चीज को वैसा ही रखने में फैमिली का बड़ा किरदार है। सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है, तुम्हें क्या मसला हो रहा है? अब क्यों बिला वजह फड्डे कर रहे हो, ठीक है? क्यों बिला वजह सोशल चेंज की एफर्ट कर रहे हो, ठीक है? दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ लव। द पावर ऑफ लव में एक्ट एज एन स्टेबलाइजिंग फोर्स। सही है, आपको मोहब्बत जगा देती है और आपको बोलती है कि भाई मैंने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे मेरे फैमिली को प्रॉब्लम हो। समझ में आई बात? या तो फिर पूरी फैमिली सारे कामों में इन्वॉल्व हो, ठीक है, नहीं तो फिर वो उस फैमिली के लिए स्टेबल कहा जाता है। इसका कॉन्सेप्ट दिया था, अगेन जर्स्की ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। जर्स्की ने इसका कॉन्सेप्ट क्या दिया था मेरा बेटा? उन्होंने कहा था देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेटाइज्ड न्यूक्लियर फैमिली। Having so many privatized stuff, अपनी मस्त जिंदगी में खुश हैं, ना जिंदगी दुनिया में किसी से कुछ लेना देना है, ठीक है। अब ये जो प्राइवेटाइज न्यूक्लियर फैमिली होती है, ठीक है, वो अपने नेपोटिज्म की वजह से अपनी इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को ज़्यादा सपोर्ट करती है। जब वो उनको ज़्यादा सपोर्ट करेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सोसाइटी के अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो कोई भी बंदा सोशल ऑर्डर या सोशल चेंज के लिए नहीं निकलेगा। यानी कि फैमिली ने क्या कर दिया, वो गेट फिर दोबारा बड़ी वाली कुंडी लगा दी, पॉलिटिकल कंट्रोल कर रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आ रही है, कोई भी सोशल चेंज लाने नहीं दे रही, कोई भी सोशल चेंज लाने नहीं दे रही। इज इट क्लियर टू यू ऑल? सो दिस वाज द होल आइडिया गिवन बाय द ट्रेडिशनल फंक्शनलिस्ट लाइक अल्थूजर एंड जर्स्की are the core theorists in this particular way. They argue that the family supports the capitalism as family is a part of ideological state apparatus, the family is a target of advertiser, and the family is prioritized nuclear family. All these things may eventually lead towards a phenomena like कि भाई family supports capitalism. Is that clear to you all? अब हम अपने next theorist की तरफ पढ़ते हैं. That is this theory is also called neo-Marxism. सही है. अब नियो मार्क्सिज्म में जैसे नियो फंक्शनलिज्म था, ये लोग कंटेम्प्रेरी इश्यूज की बात करेंगे. किसकी बात करेंगे बेटा? कंटेम्प्रेरी इश्यूज की. इसमें हमारे पास थियरिस्ट आ जाते हैं बोर्जियो. सही है. बोर्जियो ने एक्चुअल में कहा था, देखो अपर क्लास सोसाइटी की जो कैपिटलिस्ट क्लास होती है, न्यू फंक्शनलिस्ट में हमने पढ़ा था हॉवर्ड्स को, ठीक है. कैपिटलिस्ट क्लास आर हैविंग मटेरियल कैपिटल बेटा, दे आर हैविंग मॉनेटरी बेनिफिट्स, पैसा होता है इनके पास. फिर उनके पास कल्चरल कैपिटल होता है, जैसे मैंने आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी की एग्जांपल दी थी. अब बिजनेसमैन फैमिली का बच्चा होगा, उसको अप एंड डाउन सीखेगा अपनी फैमिली के अंदर. लेट्स सपोज बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ. एक अपर क्लास का बच्चा होगा, अब्बा का बिजनेस फैक्ट्री बंद हो गई, वो सारी दुनिया में जाके ऐलान करेगा यार वो अब्बा की बिजनेस फैमिली बंद, फैक्ट्री खत्म हो गई, अब्बा आजकल पैसे नहीं दे रहे, पैसे नहीं है उनके पास, ठीक है. मिडिल क्लास का बच्चे के अगर अब फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे फैमिली के अंदर, वो किसी को नहीं बताएगा, खौफ खाएगा, बिकॉज उसको डर लगेगा कि यार लोग मुझे जज करेंगे. क्योंकि आप लोग जो पढ़ते हैं ना एबिलिटी टू बाउंस बैक, दिस इज कॉल्ड एबिलिटी टू बाउंस बैक. डू यू हैव द एबिलिटी ऑफ बाउंस बैक और नॉट?
इफ यू हैव एबिलिटी टू बाउंस बैक, यू हैव अ फेथ कि मैं जिंदगी में दोबारा अटेन कर लूंगा चीज. इफ यू डोंट हैव, देन आप परेशान रहोगे. इज इट क्लियर टू यू ऑल? फिर आता है नेक्स्ट एलिमेंट, आता है सिंबॉलिक कैपिटल. आर्ट्स, कल्चर, सिंबल्स, ठीक है, वैल्यूज, ठीक है. सोशल कैपिटल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. कि सोशल कैपिटल का मतलब नेटवर्क्स होता है. क्या होता है मेरा बेटा? मैं इसको मेंशन कर देता हूं. जैसे कि सिंबॉलिक कैपिटल में आर्ट आ जाता है, म्यूजिक आ जाता है. क्लासिकल म्यूजिक इज मोर अबाउट द अपर क्लास कल्चर. सोशल कैपिटल इज मोर अबाउट नेटवर्क्स. हाँ, कल्चरल में भी आ सकता है और सिंबॉलिक में भी आ जाता है. जैसे गोल्फ है, सही है, सही है. हॉर्स राइडिंग हो गया, गोल्फ हो गया. हाँ, आर्चरी इज नॉट दैट मच elite. Golf is one of the most elite games in the world. ठीक है. तो ऑटोमेटिकली इट्स मोर अबाउट द आइडिया कि बॉर्जियो ने क्या कहा. इट्स ऑल अबाउट नियो मार्क्सिज्म. ठीक है. और नियो मार्क्सिज्म ने हमें क्या बताया कि भाई दीज आर द एडवांटेजेस दे हैव. ऑन द अदर हैंड जो वर्किंग क्लास होती है, दे आर हैविंग मटीरियल डेप्रिवेशन, कल्चरल डेप्रिवेशन. ना पैसे हैं, ना तहजीब सिखाई, ना ताल्लुकात दी. ठीक है, वर्किंग क्लास को. तो ऑटोमेटिक इनहेरिटेंस में वो गेन नहीं कर रहे. समझ में आई बात? बहुत सारे बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं कि भाई अगर ये अपर क्लास मिडिल, हमें कैसा पता चलेगा हम अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है या अंडर क्लास है? अंडर क्लास वो होते हैं सोसाइटी के बिल्कुल लेस प्रिविलेज लोग होते हैं. अगर सोसाइटी की एवरेज इनकम का एक इंसान 60% से लेस अर्न करता है तो वो अंडर क्लास डिक्लेयर किया जाएगा. सही है. अगर वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा, सही है, और उसका मंथ एंड डेफिसिट में होता है, सही है, उधार लेके ज़िंदगी गुजार रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो वर्किंग क्लास का पार्ट बन जाता है. अगर मैं आपको बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दूँ, मिडिल क्लास अपनी इनकम का मेजॉरिटी पार्ट ख़त्म कर देती है. सही है. अपर मिडिल क्लास जो होती है वो 50% तक खर्च करती है, 50% तक सेव करती है. सही है. और जो अपर क्लास होती है वो अपना घर पैसिव इनकम से चलाती है. पैसिव इनकम का मतलब एक कैपिटल जो अपनी जगह पे मौजूद है, वहाँ वो पैसे दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है. लेट सपोज अब्बा के पास पैसे थे, अब्बा ने 50 करोड़ रुपये बैंक में रखवा दिए, 50 लाख रुपये महीना आ जाता है, घर सुकून से पार्टी चल रही है. हाँ आएगा ना, सूद पे तो आ ही जाएगा. ठीक है. तो ऑटोमेटिकली क्या है, दिस इज ऑल अबाउट द अपर क्लास माइंडसेट. दे मूव देयर कैपिटल, दे जब अपनी कैपिटल अपनी जगह पे रहता है और वो उससे पैसिव इनकम के थ्रू अपनी जिंदगी को गुजारते हैं. अच्छा, अब जॉब, अब तुम दुनिया के अंदर कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं, मैंने कहा वो अपर मिडिल क्लास में फॉल इन कर जाते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जैसे जो टॉप कंसल्टेंट्स होते हैं वो अपर क्लास में ही फॉल इन कर जाते हैं. वो अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते, 100% नहीं कर पा रहे होते, वो सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं. नहीं लेना होता तो वो अपने बच्चों की एजुकेशन पे सेक्रीफाइस करते हैं, हेल्थ पे सेक्रीफाइस करते हैं. सही है. वो अपनी बेसिक नीड्स पे सेक्रीफाइस करते हैं. समथिंग लाइक दैट. देयर वाज अ लिटिल मिस्टेक ओवर हियर, लाइक वी जस्ट राइट न्यू फंक्शनलिज्म इंस्टेड ऑफ न्यू मार्क्सिज्म. Bourdieu is a neo-Marxist. It's all about neo-Marxism. देखिए जी, आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को और अंडरस्टैंड करते हैं. इट्स मोर अबाउट द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू द फैमिली. ठीक है जी. Whenever we talk about the feminist perspective, कुछ कोर कॉन्सेप्ट समझते हैं. और अभी तक मैंने ज़िंदगी में ऐसा कोई पेपर देखा नहीं है जिसमें पेपर 2 के अंदर, फैमिली के अंदर, फेमिनिस्ट का कोई सवाल ना आया. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव. बिकॉज देखो, हर पर्सपेक्टिव ने ना किसी एक इंस्टीट्यूशन को बहुत अच्छे से टारगेट किया है. समझ रहे हो? मार्क्सिज्म ने वर्क प्लेस पे किया इनइक्वालिटी को क्रिएट करने के लिए. सही है. फेमिनिज्म ने मेजरली सारे इंस्टीट्यूशन को किया है, लेकिन फैमिली को उन्होंने अलग से एम्फसाइज किया. फंक्शनलिस्ट ने भी फैमिली को अलग से एम्फसाइज किया. समझ रहे हो? तो फंक्शनलिस्ट और फेमिनिस्ट, ये वो चीज़ें हैं, अगर आपको पर्सपेक्टिव नहीं आते तो पेपर 2 में आप फेल हो जाएंगे कंफर्म. ठीक है.
अब ऑटोमेटिकली जब हम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू द फैमिली की बात करते हैं मेरा बेटा, तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. दिस इज ऑल अबाउट कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव. अब चूंकि ये एक कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, ये अगेंस्ट होगा existing social order and social institutions. It means इसके नजदीक existing social order और social institution ठीक काम नहीं कर रहे. Am I right? According to the feminists, existing social order and social institutions are not working appropriately. ठीक है? क्यों? देखो, याद रखना, दुनिया में कभी भी पर्सपेक्टिव का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो ना, अपने जहन में ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पर्सपेक्टिव जरूर रखना. समझ में आई बात? अब फेमिनिस्ट एक्चुअल में अगेंस्ट हैं पेट्रियार्की के, अगेंस्ट है मेरा बेटा पेट्रियार्की के, और दूसरी चीज दे आर ऑल्सो अगेंस्ट द क्लास इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी. दे ऑल्सो अगेंस्ट द जेंडर इनइक्वालिटी. ठीक है? फेमिनिस्ट आर अगेंस्ट द पेट्रियार्की एंड दे आर ऑल्सो अगेंस्ट द जेंडर इनइक्वालिटी. जब वो पेट्रियार्की के भी अगेंस्ट होंगे और जेंडर इनइक्वालिटी के भी अगेंस्ट होंगे मेरा बेटा, तो अब ऑटोमेटिकली क्या है, उनके नजदीक एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर, एग्जिस्टिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहा है, वो जेंडर इनइक्वालिटी को रिप्रोड्यूस कर रहा है और पेट्रियार्की को प्रमोट कर रहा है. समझ में आई बात? व्हाई दे आर अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस? बिकॉज उसके नजदीक एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर and institutions reproduce patriarchy and gender inequality. ठीक है? reproduce patriarchy and gender inequality. ठीक है? That's why they are against the existing social order and social institutions. ठीक है? अब automatically they are also against the family. ठीक है? Particularly the patriarchal families. ठीक है? पेट्रियार्की का मतलब क्या होता है? मेल डोमिनेंसी. पेट्रियार्की का मतलब क्या होता है बेटा? मेल डोमिनेंसी. देखो, याद रखो, अब ये फैमिली के अगेंस्ट में क्यों है? अब मेरी बात समझिएगा. इनके अगेंस्ट होने की जो एक सबसे बड़ी वजह है ना, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन और डिफरेंशिएशन जिसको हम कह सकते हैं. They always accept this, they always respond to this way कि भाई, if the family is segregating into male and female ideas, differentiation of ideas exist कर रहा है. जब differentiation of ideas exist करेगा मेरा बेटा, तो automatically उस differentiation of ideas से होगा क्या? उससे होगा ये कि एक चीज superior हो जाएगी और एक चीज inferior हो जाएगी. एक चीज superior हो जाएगी और एक चीज inferior हो जाएगी. ठीक है? यानी कि जेंडर्ड सोशलाइजेशन अगर होगी, मेल इज परफॉर्मिंग डिफरेंट रोल, फीमेल इज परफॉर्मिंग डिफरेंट रोल, डिफरेंशिएशन ऑफ रोल हो गया. इफ डिफरेंशिएशन ऑफ रोल अकर्स, देन देयर मस्ट बी इन द फॉर्म रिजल्ट इनटू द इनइक्वालिटी. इट मस्ट रिजल्ट इनटू द इनइक्वालिटी. वो इनइक्वालिटी में रिजल्ट कर सकती है ये चीज. वो इनइक्वालिटी में क्या कर सकती है मेरा बेटा? रिजल्ट कर सकती है. If we move forward in this particular way,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने पहले भी पढ़ी हुई है, ठीक है, फैमिली के हवाले से आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जेंडर्ड सोशलाइजेशन का, गिवन बाय एन ओकले। ठीक है, जब एनोक्ले ने इस जेंडर्ड सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया, यानी कि इसका मतलब क्या है, डिफरेंट सोशलाइजेशन फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। अब क्या होगा, इन दोनों के डिफरेंट रोल्स हो जाएंगे। अब डिफरेंट रोल्स में क्या आ जाता है बेटा, मेल विल परफॉर्म इंस्ट्रूमेंटल रोल, इंस्ट्रूमेंटल और इकोनॉमिक रोल, फीमेल विल परफॉर्म डोमेस्टिक और इमोशनल रोल। ठीक है, नाउ दिस डिफरेंशिएशन ऑफ रोल may result into what, or this segregation of roles may result into what, may result into the idea of what, इनइक्वालिटी हो सकती है, मेल ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, फीमेल लेस पावरफुल हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन, वी कैन से कि जिस तरह से आपकी सोसाइटी के अंदर चीजें डेवलप हो रही होती हैं। फेमिनिज्म कहता है फैमिली इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो जेंडर्ड सोशलाइजेशन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। वो कैसे एग्जीक्यूट करता है, सबसे इंपॉर्टेंट इमिटेशन, बच्चा देख देख के सीखता है, इमिटेट करता है। बच्चा कैनलाइजेशन से सीखता है। कैनलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, इनकरेजमेंट टूवर्ड्स एप्रोप्रिएट बिहेवियर, डिस्करेजमेंट टूवर्ड्स इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, इसके अलावा रोल एलोकेशन से सीखता है बच्चा। बच्चे को बचपन से रोल एलोकेट किया जाता है कि आपका ये रोल है, आपने ये करना है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द फेमिनिस्ट, encouragement towards an appropriate behavior and discouragement towards an inappropriate behavior. Exactly. इसमें फिर मैनिपुलेशन वगैरह की भी बात आ जाती है, लेकिन मेजर एलिमेंट जो है ये हमारे 3 एलिमेंट्स आते हैं, इमिटेशन, कैनलाइजेशन एंड रोल एलोकेशन। इस चीज़ को सबसे ज़्यादा अपोज किया जाता है फेमिनिस्ट की जानिब से अगेंस्ट द फैमिली स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा अब ज़रा सा इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में और जाते हैं। ठीक है, देखें जब हम इस चीज की और डिटेल में जाते हैं ना बेटा, ठीक है, रोल एलोकेशन, अब हमारे पास एक्चुअल में फेमिनिस्ट आइडियाज का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सही है, ब्यूटी भी है और प्रॉब्लम भी है। ब्यूटी इन अ सेंस के मैं कहता हूं जहां पर कॉन्फ्लिक्ट होता है, जहाँ पे डिबेट होती है आइडियाज़ की, वो थ्योरी बहुत डेवलप भी होती है। ठीक है, जहाँ पर क्वेश्चनिंग नहीं हो, आइडियाज़ के हवाले से एक्सेप्टेंस हो खाली, वो थ्योरी कभी भी डेवलप नहीं हो जाएगी, वो एवेपोरेट हो जाएगी सोसाइटी के अंदर। लेकिन अगेन जो डिबेट होती है वो कॉन्फ्लिक्ट को भी रीजनरेट करती है। फेमिनिस्ट के बहुत सारे आइडियाज़ एग्जिस्ट करते हैं। फेमिनिस्ट आइडियाज़ कोई एक आइडिया का नाम नहीं है। फेमिनिस्ट बहुत सारी तरीके के होते हैं और उन सारे फेमिनिस्ट के डिफरेंट आइडियाज हैं अबाउट द फैमिली स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ आइडियाज इन द फेवर ऑफ फैमिली भी चले जाते हैं और कुछ आइडियाज पर्टिकुलर तरह की फैमिली स्ट्रक्चर को सपोर्ट भी करते हैं और कुछ आइडियाज फैमिली स्ट्रक्चर को 100% अपोज कर देते हैं। एज अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट it's an important element to understand a different types of feminism. फेमिनिज्म कोई एक तरह का नहीं है और फेमिनिस्ट आइडियाज के अंदर डिफरेंशिएशन नॉर्थ वर्सेस साउथ पोल का भी है।
अगर आप रेडिकल फेमिनिस्ट को स्टडी करते हैं और लिबरल फेमिनिस्ट को उससे कंपेयर करते हैं तो भाई आइडियाज़ बहुत सारे मुख्तलिफ हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है दुनिया में कोई एक बंदा, वो लोग जो हैं वो कहते हैं ना फेमिनिस्ट का वो क्या कहते हैं, वो टैग बांटना शुरू कर, आप फेमिनिस्ट हैं, नहीं है इसका मतलब आप फेमिनिस्ट, आप जिंदा, आप इंसान नहीं हैं। भाई कौन से फेमिनिस्ट, सवाल ये। मैं समझता हूँ दुनिया में हर इंसान किसी ना किसी लेवल पे फेमिनिस्ट होता है, अगर वो इंसान है, अगर वो एक ह्यूमन बीइंग है तो। लेकिन हाँ, अगर आप ये कहते हो कि आप रेडिकल फेमिनिस्ट हो या नहीं हो, अब इसमें डिफरेंशिएशन हो सकता है एक बंदा डिफरेंस फेमिनिस्ट हो। आऊँगा सही है, हाँ। अब ऑटोमेटिकली दुनिया के अंदर मैं समझता हूँ अभी दुनिया में जो डिबेट्स चल रही हैं दुनिया में, ये एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है एज अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट, जो आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी। अब लोग कहते हैं, अब जो मैं उनको सूडो फेमिनिस्ट कहता हूँ, ठीक है, कहते हैं वी आर फेमिनिस्ट। मैं कहता हूँ विच सॉर्ट ऑफ फेमिनिस्ट यू आर, दे डोंट नो वी आर फेमिनिस्ट। समझ आई बात? सो ऑटोमेटिकली आपके क्योंकि फेमिनिस्ट आइडियाज में डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा, and it is very important thing to understand कि आपकी फेमिनिस्ट एक आइडेंटिटी होती है, सही है। अगर आपने औरत मार्च वगैरह देखा हुआ भी है तो आपको, अगर आपने फेमिनिज्म पढ़ा हुआ है प्रॉपर्ली, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये जो नारा है, ठीक है, ये जो स्लोगन है, ये कौन सा फेमिनिस्ट बोल रहा है। ये जो फ्लैग है, ये फ्लैग रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? जैसे रेड फ्लैग होता है, रेड फ्लैग इज अ साइन ऑफ सोशलिज्म। ये मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट होते हैं, ये उठाते हैं। आपने फेमिनिस्ट मूवमेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे होंगे जो बोल रहे होते हैं, जो एंटी कैपिटलिस्ट बातें कर रहे होते हैं, और कुछ प्रो कैपिटलिस्ट बातें भी कर रहे होते हैं। ये मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट होते हैं। समझ आई बात? कुछ होते हैं जो इक्वल लेबर राइट्स की बात कर रहे हैं, वो लिबरल फेमिनिस्ट हैं। कुछ आपके हैं जो रेडिकलाइज आइडियाज कहते हैं कि भाई देयर शुड बी अ मेट्रियार्की, मेल फीमेल डोमिनेंसी होनी चाहिए, वो रेडिकल फेमिनिस्ट आ जाते हैं। अब तुम सोचो, इक्वालिटी और कंट्रोल, ये दो कितने खतरनाक जुमले हैं। देयर आर टू डिफरेंट सेंटेंसेस। आप इन दो सेंटेंसेस को किसी एक मूवमेंट के ऊपर टैग नहीं कर सकते। अच्छा, मजे की बात, जो लोग फेमिनिज्म को अपोज कर रहे थे उनको भी नहीं पता होता, मजे की बात ही वो क्या करते हैं, वो टोटल फेमिनिज्म को, अगर उनका किसी एक से डिसएग्रीमेंट है तो भाई वो आपकी एक टाइप के साथ डिसएग्रीमेंट है, आप पूरी मूवमेंट को आप नहीं कह सकते। बिल्कुल उसी तरीके से है इस्लामोफोबिया। अब जुर्म करे वो टेररिस्ट, नुकसान उठाएं सारे लोग, ये कौन सी तरीका है? अब अगर एक गोरा यहां पे बैठ के ऑल अमेरिकन, ऑल मुस्लिम्स आर द टेररिस्ट, वो ये बात कहता है, तो व्हाट मींस? आप बोलो पागल वागल हो गया क्या? तुम्हारा फड्डा एक के साथ, उससे लड़ो, मुझे क्यों बोल रहे हो? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। समझ रहे हो मेरी बात? ये डिफरेंशिएशन एक तरह से पूरे पर्सपेक्टिव्स। अच्छा, अब क्या हुआ? इन्हीं डिफरेंशिएशन ऑफ आइडियाज की वजह से हुआ क्या? फेमिनिस्ट मूवमेंट को सबसे नुकसान हुआ इसकी वजह से वो ये हुआ कि भाई यूनिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव नहीं आ सकी। समझ में आई बात? अब एक फेमिनिस्ट है जो एलजीबीटीक्यू को सपोर्ट करता है खाली, अब लोगों को नजर लगता है कि भाई इफ यू आर फेमिनिस्ट इट मींस यू आर सपोर्टिंग एलजीबीटीक्यू। पागल हो गए हो क्या? वो एक डिफरेंट फेमिनिस्ट की टाइप है, बिल्कुल है। जेंडर राइट्स की बात होती है। तो अब ऑटोमेटिकली क्या होता है कि अब वो जो मैकेनिज्म है वो एक डिफरेंट मैकेनिज्म में आ जाती है चीज, सही है। तो मैं समझता हूं कि फेमिनिज्म की हर टाइप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। समझ आई बात? फेमिनिज्म की हर टाइप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, और वो कॉन्ट्ररी भी एक दूसरे से। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा जी, अब इस चीज को अगर मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, मैं बहुत ही बेसिक वर्ड्स में आपको पहले शुरू में समझाऊंगा एंड देन वी मूव फॉरवर्ड, ठीक है। मैं आपको इस सिंगल वर्ड में हर टाइप ऑफ फेमिनिस्ट, जो बेसिक टाइप ऑफ फेमिनिस्ट है वो मैं आपको समझाऊंगा। वैसे बहुत सारी होती है, मैं अभी हम 5-6 को फिलहाल डिस्कस करेंगे, ठीक है।
नंबर वन इज, जिसको समझना बहुत जरूरी है, दैट इज लिबरल फेमिनिज्म. लिबरल फेमिनिज्म का वो जो पूरा फोकस है वो जेंडर इक्वालिटी पर बेस करता है. उस पर बेस करता है बेटा जेंडर. ये अगेंस्ट सेग्रीगेशन होंगे एंड डिफरेंशिएशन होंगे. सही है. यानी कि जेंडर इक्वालिटी को सपोर्ट करते हैं, इनइक्वालिटी को अपोज करते हैं. बहुत सिंपल सा इनका फॉर्मूला है. ठीक है. ये स्टेट सपोर्ट लेने की बात भी करते हैं. सही है. और बहुत ज़्यादा रेशनल आइडियाज़ जो एग्जिस्ट करते हैं फेमिनिज्म के, वो लिबरल फेमिनिज्म में एग्जिस्ट करते हैं. लिबरल अब क्या है, ये लेजिस्लेशन के थ्रू चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई डाइवर्स रिफॉर्म एक्ट आ गया दुनिया के अंदर आपका इक्वल पे एक्ट आया है यूके के अंदर. वो तमाम आइडियाज़ को सपोर्ट करते हैं कि दिस इज कॉल्ड लिबरल फेमिनिज्म, दैट द मेल एंड फीमेल शुड बी इक्वल. दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे लिबरल फेमिनिज्म स्टेट पॉलिसी का दर्जा रखता है. सही है. अगर स्टेट पॉलिसी नो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी बेस करती है, ठीक है, तो नो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी इंडिविजुअल. ठीक है. क्या कहते हैं, अच्छा जी. सो इफ यू टॉक अबाउट द लिबरल फेमिनिस्ट आइडियाज, इट मीन्स दे आर गोइंग टू से दिस थिंग, दे आर गोइंग टू सपोर्ट द आइडिया ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन अ ह्यूमन सोसाइटी. ठीक है. वो कहते हैं कि देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ रोल्स, इक्वालिटी ऑफ आइडियाज, इक्वालिटी ऑफ एक्सप्रेशन एंड इक्वालिटी ऑफ पोजिशनिंग विद इन अ सोसाइटी. ठीक है. इफ वी मूव फॉरवर्ड देन, अगर मैं सिनेरियो को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं तो हमें क्या समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है, देयर इज अनदर फेमिनिस्ट टाइप, वी यूज्ड टू कॉल देम मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट. ठीक है. अब दे आर अगेंस्ट क्लास एंड जेंडर इनइक्वालिटी. अब जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जो दुनिया में कैपिटलिज्म, अब बहुत सारे आपने देखा होगा जो रेड कलर के कपड़े पहन के जितने भी लोग आपको नजर आएंगे या रेड फ्लैग्स होल्ड किए हुए जितने लोग औरत मार्च में नजर आएंगे, वो सारे मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट हैं. अब उनके आइडियाज आप बोले भाई इसका फेमिनिज्म से क्या ताल्लुक है, लेकिन वो दे क्रिएट द रिलेशनशिप ऑफ क्लास इनइक्वालिटी विद जेंडर इनइक्वालिटी. अब जरा समझिएगा. It's a very basic thing. According to the Marxist feminists, as male is performing the economic role within the family structure, as male is performing the economic role within the family structure, as male is performing the economic role within the family structure, the male become the capitalist. As male is performing the economic role within the family structure, the male become the capitalist. And the female is performing domestic role within the family structure, female become a domestic laborer. So they include that relationship of capitalist and working class within the family relationship. समझ में आई बात? They consider all the capitalist ideas are the reason behind the gender inequality. Male become capitalist, female become working class. समझ में आई बात? तो they include that particular concept and execute that particular concept in feminist ideas. They link the class inequality with gender inequality. Is it clear to you all? Okay. Afterwards, we are having another theory, another feminist. We used to call them radical feminists. Little hardcore and radicalized ideas. Radical feminists जो होते हैं हमारे पास, वो क्या होते हैं? Actually, they are who against patriarchy. They support the idea of matriarchy. फीमेल डोमिनेंसी को सपोर्ट करते हैं. ठीक है. अब रेडिकल फेमिनिस्ट के अंदर ही एक्चुअली ये वो फेमिनिस्ट होते हैं जो फैमिली रिलेशनशिप्स के भी खिलाफ हैं. इनमें से कुछ होते हैं जो लेस्बियन रिलेशनशिप्स को भी सपोर्ट करते हैं. एलजीबीटीक्यू आइडियाज जो आते हैं वो आपके पास रेडिकल फेमिनिस्ट के पास आते हैं. दे सपोर्ट द मेट्रियार्की, फीमेल डोमिनेंसी विद इन द सोसाइटी. वो ये कहती हैं कि भाई फीमेल डोमिनेंसी होनी चाहिए सोसाइटी में रादर देन मेल डोमिनेंसी.
Exactly. We are going to discuss more about these liberal feminists, Marxist feminists, and radical feminists. Okay. देखो, whenever we talk about these ideas, these perspectives, we need to understand more about it. We will discuss two more types of feminism, but after the detailed discussion of these three types of feminists. Okay. Whenever we talk about the liberal feminism, सही है, they always talk about gender equality. ठीक है? And they also support what? They also support the state. According to the liberal feminist, state is a protective agency. सोसाइटी में जो पेट्रियार्की की वजह से ऑपरेशन हो रहा है, हमें स्टेट के लॉज ही बचा सकते हैं. स्टेट के लॉज ही दिस सेलिब्रेट दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है. अब जैसे कि ऑटोमेटिकली दे ऑलवेज वर्क फॉर द लेजिस्लेशन. लेजिस्लेशन में हमारे पास क्या चीज आ जाती है मेरा बेटा? लेजिस्लेशन में हमारे पास पहली चीज आ जाती है, इनको कौन कौन सी सक्सेस मिली है. ठीक है. एक है डिवोर्स रिफॉर्म एक्ट 1969. फिर यूके के अंदर एक लॉ पास हुआ था जिसको हम कहते हैं इक्वल पे एक्ट. फिर एक और पास हुआ था, उसका नाम था सेक्स डिस्क्रिमिनेशन एक्ट. अब ये जो चीजें पास आउट हो रही हैं, ये कहां से हो रही हैं बेटा? ये स्टेट की जानिब से हो रही हैं. ठीक है. और इसके पीछे एफर्ट किसकी है? लिबरल फेमिनिस्ट की एफर्ट है. किसकी एफर्ट है बेटा? लिबरल फेमिनिस्ट स्टेट को साथ लेके चलने की बात करते हैं. मैंने कहा ना कि बहुत सारे फेमिनिस्ट होंगे जो कि उनके आइडियाज में कॉन्ट्रडिक्शन भी एग्जिस्ट कर सकता है, बिकॉज उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट हैं और मेथोडोलॉजीज डिफरेंट हैं. ठीक है. वो डिफरेंट मेथोडोलॉजीज के थ्रू काम करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं. ठीक है. अब जब इस चीज को आगे लेके चलते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि भाई लिबरल फेमिनिस्ट आर सपोर्टिंग द आइडिया कि हम किसी तरह से स्टेट लेजिस्लेशन के थ्रू इक्वालिटी को पास आउट कर सकें, इक्वालिटी को सपोर्ट ले सकें. ठीक है. अब दुनिया की बहुत सारे लेजिस्लेशन कंट्रीज और उनके जो लेजिस्लेशंस हैं वो भी सारे लिबरल फेमिनिस्ट आइडियाज को सपोर्ट कर रहे होते हैं. ठीक है. फिर हमारे पास सेकंड आइडिया आता है मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट. क्या आता है मेरा बेटा? मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट. मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट क्या कहते हैं? वो दे आर अगेंस्ट द क्लास इनइक्वालिटी एंड द जेंडर इनइक्वालिटी. वो क्लास इनइक्वालिटी के भी अगेंस्ट में है और जेंडर इनइक्वालिटी के भी अगेंस्ट में. वो दोनों इनइक्वालिटीज को अपोज कर रहे हैं. अब वो किस तरह से अपोज करें इस बात को समझते हैं. इनके मुताबिक एज मेल इज परफॉर्मिंग इकोनॉमिक रोल. अब जो भी बंदा इकोनॉमिक रोल परफॉर्म कर रहा है वही इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का फॉर्मूला चल रहा है इनके दिमाग में. एज मेल इज परफॉर्मिंग इकोनॉमिक रोल, द मेल बिकम कैपिटलिस्ट. द मेल बिकम कैपिटलिस्ट. एज मेल इज परफॉर्मिंग इकोनॉमिक रोल, द मेल बिकम कैपिटलिस्ट. ठीक है. फिर as female is performing domestic role, the female become domestic laborer. अब डोमेस्टिक लेबरर का मतलब है कि एक फीमेल है जो है वो घर के अंदर अनपेड वर्कर की जॉब कर रही है. क्या कर रही है मेरा बेटा? अनपेड वर्कर की जॉब. उसके नज़दीक
जो एक्चुअली देखो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट जो है ना वो वर्क प्लेस को भी अपोज कर रहे हैं, बिकॉज उनको लग रहा है कि वर्क प्लेस के ऊपर डुअल ऑपरेशन हो रहा है, फीमेल को दोनों जगह पे ऑपरेस किया जा रहा है, ठीक है। और मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट एक्चुअल के अंदर वर्क प्लेस को भी अपोज कर रहे हैं और फैमिली स्ट्रक्चर्स को भी अपोज कर रहे हैं कि हाउ दैट वर्क प्लेस अनइक्वल मैकेनिज्म इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्ट इन विद इन द फैमिली। समझ में आई बात? अच्छा, अब इकोनॉमिक रोल की जब हम बात करते हैं तो अब फीमेल के ऊपर इनकी जाने से एक थॉट आती है डुअल बर्डन की, कि इफ फीमेल इज परफॉर्मिंग डोमेस्टिक इकोनॉमिक रोल ऑल्सो, तो उसके ऊपर डुअल बर्डन आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक रोल और इन द फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक रोल, ठीक है। इसके अलावा फीमेल के ऊपर कहते हैं कि ट्रिपल शिफ्ट भी परफॉर्म कर रही होती हैं फीमेल्स, यानी कि इकोनॉमिक एंड डोमेस्टिक रोल, अगर द फीमेल इज परफॉर्मिंग डुअल रोल्स, सही है। ट्रिपल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रिपल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि फीमेल इज परफॉर्मिंग 3 शिफ्ट, इकोनॉमिक शिफ्ट, डोमेस्टिक शिफ्ट एंड इमोशनल रोल। उसका इमोशनल रोल क्या है? शौहर से बात करना, हस्बैंड से, बच्चों के साथ बात करना, इंगेज करना, अपने इमोशंस को लिंक करना उसके साथ, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली दीज आर द ट्रिपल शिफ्ट द फीमेल यूज्ड टू परफॉर्म। तो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट कहते हैं कि फीमेल तो एक लेबर बन गई है भाई, सही है। इसी वजह से मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट जो है फैमिली स्ट्रक्चर्स के आइडियाज को इस तरह से प्रमोट नहीं करते। समझ में आई बात? अच्छा, अब इस चीज को थोड़ा सा हम आगे लेके चलते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं रेडिकल फेमिनिस्ट, ठीक है। रेडिकल फेमिनिस्ट जो हैं दे सपोर्ट द आइडिया ऑफ मेट्रियार्की, सही है। यानी कि ये सपोर्ट किसको कर रहे हैं बेटा? मेट्रियार्की को सपोर्ट कर रहे हैं और पेट्रियार्की को अपोज कर रहे हैं। ये हार्ड लाइनर्स हैं। क्या है मेरा बेटा? हार्ड लाइनर्स, सही है। वो कहते हैं ऑल सोशल इंस्टीट्यूशंस are supporting patriarchy. All the social institutions are supporting the male culture, ठीक है। अब इसके अंदर वो कई मर्तबा ऐसी some theorists इसमें से कुछ थ्योरिस्ट हैं, सम थ्योरिस्ट सपोर्ट लेस्बियन रिलेशनशिप, some theorists support the lesbian relationship also, and some theorists are also against the reproductive role, फीमेल के रिप्रोडक्टिव रोल को भी अपोज करते हैं, बिकॉज उनके नज़दीक रिप्रोडक्टिव रोल जो है वो मेल डिपेंडेंसी को बढ़ाता है। वो इस मेल डिपेंडेंसी को बढ़ने से रोकने के लिए कहते हैं कि फीमेल शुड नॉट परफॉर्म द रिप्रोडक्टिव रोल, रादर दे रिलाई ऑन टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट्स लाइक, जिसके अंदर आपका they don't want कि the female will rely on male for reproductive role। वो कहते हैं कि भाई IVF होना चाहिए, टेस्ट ट्यूब बेबीज के थ्रू डेवलप किया जाए, सरोगेट मदर्स होना चाहिए, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली दे डोंट वांट टू सपोर्ट दीज आइडियाज, ठीक है। रेडिकल आइडियाज है, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट फेमिनिस्ट की फॉर्म आती है जिसको हम कहते हैं ब्लैक फेमिनिज्म। अब ब्लैक फेमिनिस्ट क्या है बेटा? अब जरा सा समझिएगा। दे आर अगेंस्ट द जेंडर इनइक्वालिटी एंड रेसिज्म। जेंडर इनइक्वालिटी और रेसिज्म दोनों के खिलाफ है। इनके नजदीक एक्चुअल में ये लोग क्या कहते हैं कि लिबरल फेमिनिज्म जो है एक्चुअल में क्या कर रहा है? लिबरल फेमिनिज्म जो है इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ, दे आर रिप्रेजेंटिंग द वाइट वुमेन इश्यूज, वाइट वुमेन इश्यूज। वो लिबरल फेमिनिस्ट को टारगेट करते हैं, ठीक है, कि ये लोग जो हैं वाइट वुमेन के इश्यूज को टारगेट कर रहे हैं
they are not targeting, they are not discussing the issues of the females, of black females. ठीक है, black women के rights को, black women के issues को ये लोग highlight नहीं कर रहे, जिस चीज को ये target करते हैं, oppose करते हैं. समझें आप मेरी बात, ठीक है. अब ऑटोमेटिकली इस फिनोमेना को अगर मैं आगे लेके चलता हूं, ठीक है, तो हमें क्या बात समझ में आती है? हमें ये बात समझ में आती है कि ब्लैक फेमिनिज्म अगेन ये लिबरल फेमिनिस्ट को अपोज कर रहा है. क्यों अपोज कर रहा है? क्योंकि उनके नजदीक लिबरल फेमिनिस्ट सिर्फ जेंडर इक्वालिटी की जो बात करें वो व्हाइट वुमेन के इश्यूज और उनके राइट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करती है एज कम्पेयर टू द ब्लैक वुमेन इश्यूज एंड ब्लैक वुमेन राइट्स. सही है, तो इस वजह से ब्लैक फेमिनिज्म रीजेनरेट होता है सोसाइटी में. फिर हमारे पास नेक्स्ट फेमिनिस्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं डिफरेंस फेमिनिस्ट. डिफरेंस फेमिनिस्ट क्या होते हैं बेटा? बहुत ही सिंपल सी बात है. ये लोग कहते हैं मेल एंड फीमेल शुड परफॉर्म डिफरेंट रोल्स. अब यानी कि बहुत सिंपल सी बात है. अगर मैं आपको इस सिंपल सी आइडिया को लेके चलूं, एक मेरे पास मार्केटिंग मैनेजर है, कहते हैं स्टेटस शुड बी सिमिलर, स्टेटस शुड बी सिमिलर एंड दे शुड परफॉर्म डिफरेंट रोल्स. ठीक है, अब जैसे कि एक मार्केटिंग मैनेजर है कंपनी का, एक ऑपरेशन मैनेजर है, दोनों मैनेजरियल पोजीशन के ऊपर है, बट दोनों का काम डिफरेंट है. अब ये नहीं हो सकता सोसाइटी कहते हैं इनके मुताबिक कि भाई मार्केटिंग मैनेजर भी ऑपरेशन में घुस रहा है, ऑपरेशन वाला भी मार्केटिंग में घुस रहा है, तो ऑटोमेटिकली कहते हैं देयर शुड बी डिफरेंशिएशन ऑफ रोल्स. सही है, लेकिन स्टेटस शुड बी सिमिलर. स्टेटस शुड बी, आप ये नहीं कह सकते द फीमेल इज परफॉर्मिंग रिप्रोडक्टिव रोल तो उसको उसका स्टेटस कम है, या फिर वो फीमेल जो है होम मेकर है तो उसका स्टेटस कम है. स्टेटस शुड बी सिमिलर बट द रोल शुड बी डिफरेंशिएटेड, क्योंकि मर्जर ऑफ रोल्स विल इवेंचुअली बर्डनाइज द फीमेल मोर. ठीक है, तो डिफरेंस फेमिनिज्म भी एक फेमिनिज्म की प्रॉपर फॉर्म होता है. ये लोग दे आर अगेंस्ट द लिबरल फेमिनिज्म बिकॉज उनके मुताबिक लिबरल फेमिनिज्म जो है वो एक्चुअल के अंदर मिक्सिंग ऑफ रोल्स और इक्वालिटी की बात कर रहा है. कहते हैं भाई स्टेटस शुड बी सिमिलर बट दे बोथ शुड परफॉर्म स्पेशलाइज्ड रोल्स फॉर ईच अदर. इज इट क्लियर टू यू ऑल?